بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ایک چڑیل کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کو ملے آپ سب کو۔ تو چلیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا۔ اس نے اپنے فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بج جاتے کام کرتے کرتے۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد جب اس کو دفنایا گیا، رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گیا، شام کو اس کی قبر پہ کوئی چھیڑخانی کر گیا۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر یہ سب نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جس نے ایسا کیا ہو۔ ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سال کی عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنایا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے پھر ملازم نے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ چنانچہ سوچتے سوچتے نیند آ گئی، سو گیا۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا، ملازم تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی، کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھی ہے۔ اس نے عہد کر لیا ہے، اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد اسے دفنایا گیا۔ رات کے 1:30 بجے ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا کہ ادھر ادھر دیکھا کہ عورت مجھے دیکھ نہ لے۔ عورت نے بھی ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔
आस पास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी न देखा। वहां से एकदम डर गया कि ये कहीं चुड़ैल तो नहीं। परेशान हो गया कि लड़की के पीछे पीछे आ रहा था, औरत में आगे आगे औरत जा रही थी, पीछे पीछे में था। औरत कहाँ चली गई? वो डर गया। वो एक दरख्त के पास चुप करके बैठ गया। आसपास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास इसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान चुप के इसको देख रहा था और इसकी सिमत आस्ता आस्ता बढ़ रहा था। वो औरत नजर आई थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थीं, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंचा, एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम ने यूं ही पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत उसके सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी ना था कि इसी औरत ने छुरे से इस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे हुआ लेकिन छुरा इसके पेट को चीर चुका था। मुलाजिम ज़मीन पर गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पर झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इससे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नजर आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर ली कि औरत समझे ये मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए और उसे धक्का दिया। औरत के हाथ से छुरी ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में ली और औरत पर वार किया। छुरी औरत के हाथ पर लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश होके गिर पड़ा। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी न की हो, तो वहां मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ और कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम ही करता रहा, क्योंकि लाश इसी की कब्र के पास पड़ी है और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में चैम गोइयाँ हो रही थी कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल कर खाता था। पूरे गांव में खौफ व हरास फैल गया। कुछ लोगों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने, जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, ज़रूर इसको भी उसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थीं। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिल के मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तब तक पहरा छुप कर दिया जाएगा, ताकि जो ये हरकत करता है वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ उनके लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि यह मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरा से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पे आ गए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम के बाद सर्दियों के दिन थे, यकबस्ता हवाएं चल रही थीं। गांव में फौतगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्ल कफन दे के दफनाया गया और लोग सरे शाम ही घरों को रवाना हो गए कि ऐसे ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े और जवान बैठक में बैठे हुए थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते, जहां बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते, जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा और सब मरने वाले को याद करते
इनसे वाबस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे होते। अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने, जिसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था, उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये काम मुलाजिम नहीं किया और कब्रों के साथ छेड़छाड़ मुलाजिम ही करता था। और ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो वो तीनों दुआ करके वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी उस तरफ को रुकी। वहाँ जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया, जो कोई भी हो आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था छुरी से। औरत ये देख के 3 लोग हैं घबरा कर एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पे हमला भी किया, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानब को भागी। छुरा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। एक ने वो छुरा उठाया, तीनों उसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है कि क्या देखते हैं एक औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरा था औरत पे छुरियों के साथ वार कर दिए और औरत वहीं गिरकर तड़प के मरने लगी। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा और ये वहां से भाग आई। अब इसे हमने पकड़ा है इसलिए इसे मार रहे हैं। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, हत्ता के औरतें लाश के गिर जमा हो गए जैसे कि कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी, हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सबके सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते रहे। सारे गांव वाले मिल के जाते कि देखें कि दोबारा कुछ तो नहीं होता, ऐसा कुछ वाक़या पेश तो नहीं आता। फिर एक बार एक बाबा जी वहाँ से गुजरे तो वो उस गांव में ठहरे। तो बैठक में मौजूद लोगों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये वाक़या यहाँ पे पेश आता रहा। तो बाबा जी ने कहा कि वो चुड़ैल है जो बगदाद से हमने इसे भगा दिया था, वहाँ से इसको हमने जलाया था लेकिन ये भागने में कामयाब हो गई थी। तो ये जो आप बता रहे हैं ये बगदाद में ऐसी औरत थी, चुड़ैल थी वो, जो कब्रों से मुर्दों को निकाल के खाया करती थी, छुरी के साथ उनका गोश्त काट लेती थी और उसके बाद जब उसको वहाँ से मार पीट कर हमने भगा दिया तो उसने इस तरफ का रुख किया। तो तब गांव वालों को पता चल गया कि मुलाजिम बेकसूर था। सारा माजरा जो था उनके सामने आ गया कि ये औरत ही थी जो चुड़ैल थी और वो बगदाद से भाग कर आई थी। इसी वजह से भागी थी कि वहाँ पर भी वो मुर्दे खाया करती थी। बाबा जी ने जब बात बताई तो सबको यकीन हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।